फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन की है। नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन ए डाटाबेस। जो डाटा है उसनू एफिशिएंटली एंड प्रॉपर वे दे विच आपां डाटाबेस दे विच स्टोर करना। दूसरा पॉइंट की है, बेसिक objective of normalization is to reduce the redundancy, that is duplicacy। means duplication of data ਨੂੰ remove करना, that is the basic objective of a normalization। to reduce or to eliminate the data redundancy in the relation, this is the main objective of a normalization। third की है, in relational database design, the process of organizing the data to minimize redundancy is known as the normalization। कि ਆਪਾਂ रिलेशनल डाटाबेस डिज़ाइन स्टडी ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਪਲ, ਕਾਰਡੀਨੈਲਿਟੀ, ਐਟਰੀਬਿਊਟ, ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? the process of organizing the data to minimize the redundancy is known as the normalization। fourth point की है, it involves the dividing the table into two or more relation, that is the table, and defining the relationship between them। ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਿਗਰ ਟੇਬਲ ਆ, ਉਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟੇਬਲ ਦੇ, ਠੀਕ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟੇਬਲ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, then we create a relationship between the multiple table। ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟੇਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ। ਫਿਫਥ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ of removing the redundancy and dependency of attribute in a database। it maximize the query flexibility। ठीक है, query the meaning है ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ commands ਲਗਾਣੀ, ठीक है, तो query the meaning command। sixth step ਕੀ ਹੈ? it eliminate the insertion, insert करना, deletion, delete करना, update, anomalies। ठीक है, इसमें की बोलते हैं anomalies, 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 that is the problem in a database। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? it ensure that data model is complete and correct। ਤਾਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ। ਸਟੈਪ 4 ਨੋਰਮਲ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ, नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग है टू रिमूव द रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी, मेन ऑब्जेक्टिव ये है। लेकिन नॉर्मल फॉर्म होंदियां कितनियां ने? सब तो पहला अपने कोल की है अननॉर्मलाइज्ड डाटा। ठीक, अपने को पहला कोई भी नॉर्मल फॉर्म नहीं है, तो UNF नाल आपां रिप्रेजेंट किया। अननॉर्मलाइज्ड मीन्स अनऑर्गेनाइज्ड डाटा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है डाटा की। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਫਸਟ ਨੋਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ, ਫਸਟ ਨੋਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਨੋਰਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
अपने कोल की होएगा टू रिमूव द पार्शियल डिपेंडेंसी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ, ਸੈਕੰਡ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ। ਥਰਡ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਥਰਡ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ। थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगी, उस बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म तो बाद है BCNF फॉर्म, ठीक है, BCNF दैट इज बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म तो बाद आप BCNF फॉर्म च कन्वर्ट करांगे। BCNF फॉर्म दे विच कन्वर्ट जो किया डाटा उसका की मीनिंग है टू एनश्योर द एवरी डिटरमिनेंट इज ए कैंडिडेट, ठीक, ये आप स्टडी करांगे टू एनश्योर एवरी डिटरमिनेंट इज ए कैंडिडेट की। उस तो बाद अपने कोल की है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, दिस इज द फोर्थ नॉर्मल फॉर्म से की है टू रिमूव द मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंस। देन लास्ट वी विल कन्वर्ट इनटू ए फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, दैट इज टू रिमूव द ज्वाइन डिपेंडेंसी। तो अपने कोल की ने 5 नॉर्मल फॉर्म्स ने, पर हरेक नॉर्मल फॉर्म के विच आपां कोई पर्टिकुलर कोई ना कोई डिपेंडेंसी रिमूव करनी, ठीक। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से अपने को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के विच की टू रिमूव द रिपीटिंग ग्रुप। फिर जो मैं उसको कन्वर्ट करता सैकेंड नॉर्मल फॉर्म के विच, तो सैकेंड नॉर्मल फॉर्म च आपां की करांगे फिर पार्शियल डिपेंडेंसी नूं रिमूव करांगे। देन अगेन गो टू द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म से जो गए तो आप रिमूव की करांगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। उस तो बाद अपने को की है बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म से की है कि जिन्ने भी डिटरमिनेंट ने, ठीक है, अपन डिपेंडेंसियां स्टडी करनी है, जिन्ने भी डिटरमिनेंट ने एवरी डिटरमिनेंट इज ए कैंडिडेट। उस बाद फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म से की है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में रिमूव करनी। और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म से अपने को की है रिमूव द ज्वाइन डिपेंडेंसी। इसी तरह अपने को 5 नॉर्मल फॉर्म्स ने, एवरी नॉर्मल फॉर्म हैज सम स्पेसिफिक फंक्शन और एक्टिविटी विच वी अप्लाई इनटू द पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। और सारे फॉर्म दे विच आपां कोई ना कोई डिपेंडेंसी नूं रिमूव करना। The first normal form, a table is said to be in first normal form if values, if value in the domain of each attribute of a relation are atomic। इसका की मीनिंग है if values in the domain of a each attribute of a रिलेशन आर एटॉमिक। मीनस ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀ ਨੇ, ਕਾਲਮ ਨੇ, ਠੀਕ। ਔਰ ਉਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟੋਮਿਕ ਮੀਨਸ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਓਨਲੀ ਵਨ ਵੈਲਿਊ is associated with each attribute, ठीक, only single value is associated with each attribute of a relation, then it is known as the table in a first normal form, okay? Example here, a table in a first normal form when it contain no repeating groups, no repeating groups, that is each and every cell, okay, cell C E S means cell in a relation, there can be only one value, okay, there is only a one value, okay। ਹੁਣ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਨ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਅਨਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ, ठीक है, UNF का की मीनिंग है अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म। तो मैं एक टेबल है, इस टेबल का नाम की है एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल। टेबल का नाम जरूर लिखना है जो एग्जाम्पल लिखनी। ये मेरा एम्प्लॉय टेबल है
ठीक एम्प्लॉय टेबल इस दे विच अपने कोल तीन एट्रीब्यूट ने एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम ते डिपार्टमेंट ठीक तीन एट्रीब्यूट ने और टेबल का नाम की है एम्प्लॉय है और टेबल दे विच रो कितनियां ने 3 देर द 3 रोज 1 2 एंड 3 जिंदा की मीनिंग है तीन रोज ने तो इसनों की बोलते टपल अपने कोल इस टेबल दे विच तीन टपल्स ने तीन एट्रीब्यूट ने और टेबल का नाम की है एम्प्लॉय ये चीज़ां सारियां तुसीं लिखनियां जो ये टेबल आ ठीक है दिस इज द वैल्यू इन एट्रीब्यूट एम्प्लॉय आईडी दिस इज द वैल्यू दिस इज द वैल्यू मेरा कंप्लीट की है सैल है इस सैल दे विच वैल्यू की है 103 इसी तरह मेरा एक सैल है टेबल और इस सैल दे विच वैल्यू कितनी है 101 फिर इसी तरह एम्प्लॉय नेम है आकाश अरजीत ते अंकु ठीक ये भी मेरे को तीन वैल्यूज आ गया ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ EMPLOYE ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ BCA ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ MCA ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ MCA ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਕ BCA ਵੈਲਿਊ लेकिन ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ इस सैल विच सिंगल वैल्यू है इस सैल दे विच सिंगल वैल्यू लेकिन इस सैल दे विच जिहड़ा फर्स्ट टपल है और डिपार्टमेंट कॉलम है उस दे विच दो वैल्यूज हैं तो आपां की करना ये जिहड़ी अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म है इस जिहड़ी वैल्यू नूं है उस नूं कन्वर्ट करना सिंगल वैल्यू दे ठीक है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का की मीनिंग है टू रिमूव द रिपीटिंग ग्रुप्स मीन्स एवरी सैल मस्ट कंटेन द एटॉमिक वैल्यू एटॉमिक वैल्यू कितना आएगी इस टेबल में मैं की करना डी इस टेबल आप करांगे कन्वर्ट करांगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म दे ठीक है दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आ टेबल तो मैं इस टेबल नूं आ मेरा की हो गया एम्प्लॉय आईडी इतने मैं कॉलम के नाम नहीं लिखे एम्प्लॉय आईडी नेम आ मेरा की है डिपार्टमेंट ठीक तो मैं की किया जेड़ा मेरा फर्स्ट रिपोर्ट सी 101 लिखता फिर आकाश डिपार्टमेंट की लिखता MC अगेन फिर की लिखा 101 आकाश और वैल्यू इतने की लिखी मैं BC तो इस वैल्यू नूं मैं की करता दो रो दे विच स्प्लिट करता एक रो दे विच मैं BCA लिखती एक रो दे विच मैं की लिखती MC लिखती बाकी वैल्यू सेम रहनी 101 आकाश 101 आकाश और इतने MC लिखता इतने मैं की लिखता BC लिखता इनका की मीनिंग होया कि मेरे एक सैल दे विच एटॉमिक वैल्यू इतने भी सिंगल वैल्यू है इतने भी मेरी की सिंगल वैल्यू बाकी तो अपने ऑलरेडी पहले ही सिंगल वैल्यू सी सारी 101 102 103 बाकी तो ऑलरेडी मेरी सारियां की ने सिंगल वैल्यू हुण आ मेरा टेबल की है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म दे विच ठीक ये तो हो गया फर्स्ट मैथड दूसरा मैथड मेरे कोल की हुंदा सेकंड मैथड इज द डीकंपोजिशन ऑफ ए टेबल एक टेबल नूं दो टेबल दे विच कर देना डिवाइड कर देना दूसरा मेरे को मेथड की है डीकंपोजिशन ऑफ ए टेबल
ਸੈਕਿੰਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਟੇਬਲ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਟੇਬਲ। ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਮੇਰੇ ਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ EMPLOYEE ID ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। दूसरा टेबल मेरा की बनेगा, दूसरे टेबल दे विच मैं सेकंड टेबल इत्थे मेरे कोल की होएगी आईडी। ठीक है, इत्थे मेरे कोल की होएगा नेम। और दूसरे टेबल इत्थे मेरे कोल की आ जाएगा 101 101 जिदा आईडी है उसका नाम की है आकाश। वो इत्थे आ जाएगा, इत्थे आ जाएगा 102 और इत्थे मेरे को की आ जाएगा 103। ठीक, दो टेबल दे विच आपां इस टेबल नूं डिवाइड कर देना, दिस वन दिस। ठीक, और इस नूं बोलदे डीकंपोजिशन ऑफ ए टेबल। हुण जदों मैं इस नूं डिवाइड करांगा इस टेबल दे विच सारियां वैल्यूज किने एटॉमिक ने, मतलब कोई भी सैल दो वैल्यूज कंटेन नहीं करे। मीनस इस दे विच एक वैल्यू सिर्फ MC है, इस दे विच एक वैल्यू सिर्फ BC है, इस दे विच एक वैल्यू सिर्फ BC है, इस दे विच एक वैल्यू सिर्फ की है B। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਵੈल्यू। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੇਬਲ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਟੇਬਲ ਨੂੰ। ਆ ਮੇਰਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਟੇਬਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ EMPLOYEE ID ਲਿਖ ਲਈ, EMPLOYEE ID 101 102 103। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYEE ID ਲਿਖ ਲਈ 101 102 103। ਇਹ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਲਿਖ ਲੈਣਾ EMPLOYEE ਐਜ਼ ਇਟ फस्ट दो कॉलम मैं एज इट लिख, वो मेरा की बन जाएगा एक टेबल बन जाएगा। उस तो बाद अगेन मेरे को एक कॉलम रह गया डिपार्टमेंट वाला, उन्हें मैं दूसरे टेबल च लिख लेना। ठीक है, इतने हाँ डिपार्टमेंट वाला टेबल रह गया। इस डिपार्टमेंट वाले कॉलम को मैं दूसरे टेबल च लिख लेना, लेकिन वैल्यू मैं सारियां अलग अलग बन गया BCA MCA BCA BBA। ਹੁਣ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ BCA ਤੇ MCA ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ID ਕੀ ਹੈ 101, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 101 ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ BCA 102 BBA 103 ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਲਿਖ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੋ ਟੇਬਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਾਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ इसका EMPLOYEE ID ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸਦਾ EMPLOYEE ID ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਕਾਮਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਟੇਬਲ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਾਮਨ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਸਟ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ क्रिएट हो जाएगी।